Dear learners, welcome back again in our today's session. So, today we are going to talk about the topic curriculum adaptation for diverse learners. So, let's start our today's topic, that is curriculum adaptation for diverse learners. In order to create an inclusive learning environment that accommodates diverse learners, curriculum adaptation for diverse learners can be implemented. These adaptations should be tailored to the individual needs of each learner in order to ensure they are able to access and engage with the curriculum. अर्थात समावेशी शिक्षा वातावरण बनाने के लिए जिस पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो ट्रेडिशनल वे में ना रहकर चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। उन चाइल्ड सेंटर्ड इस प्रकार का हमें पाठ्यक्रम को अपनाना चाहिए समावेशी शिक्षा में, जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पर आधारित हो। विविध शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूल पाठ्यक्रम लागू किए जाएं। इन अनुकूलनों को प्रत्येक शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे पाठ्यक्रम तक पहुंच सके और उसमें सक्रिय रूप से भाग ले सके। Here are some examples of curriculum and curricular adaptation for diverse learners. यहाँ विविध शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम अनुकूलनों के लिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। So the first one is multi-sensory materials. Multi-sensory materials can help students who have a difficulty learning through traditional methods. These materials engage the sense of sight, hearing, touch, and movement to reinforce learning. For example, using manipulating such as blocks, counters, and other tangible objects can help students understand math concepts. Using videos, songs, or podcasts can help students with auditory learning preferences understand concept. अर्थात मल्टी सेंसरी सामग्री उन छात्रों की सहायता कर सकती है जिन्हें पारंपरिक तरीकों से सीखने में कठिनाई होती है। ये सामग्री दृष्टि, सुनवाई या स्पर्श और गति जैसी इंद्रियों को संलग्न करके सीखने को सुदृढ़ या मजबूत बनाती है। एग्जाम्पल के लिए गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए ब्लॉक, काउंटर्स और अन्य ठोस वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। ऑडिटरी लर्निंग की प्राथमिकता वाले छात्रों को अवधारणाओं को समझने में वीडियो, गाने या पॉडकास्ट का उपयोग किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस. Individualized instructions tailors the curriculum to the learning needs of individual students. It takes into account the student's learning style, strength, and weaknesses. This can include personalized learning plans, targeted instructions, and additional support. For example, as students with dyslexia may need additional support in reading or writing, while students with ADHD may need a structured learning environment to help them stay focused. अर्थात व्यक्तिगत अनुदेशन की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत अनुदेशन पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत छात्रों की सीखने की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार तैयार करता है। यह छात्र की सीखने की शैली, उसकी ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं, निर्देश और अतिरिक्त समर्थन जो हम एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करते हैं छात्रों को, वह सम्मिलित हो सकता है। उदाहरण के लिए एक छात्र जो डिसलेक्सिया की गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसे पढ़ने या लिखने में अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, जबकि ADHD वाले छात्र को ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए
एक संरचित सीखने के वातावरण की आवश्यकता हो सकती है। Now next one is differentiated instructions. Differentiated instructions involves adjusting the curriculum to meet the varying needs of students. It recognizes the students learn at different rates and have a different learning styles. Teachers can differentiate instructions by providing varied activities and assignments labeled regarding materials and flexible grouping. For example, a teacher may provide different level of reading materials to meet the needs of all students in classroom. अगर हम बात करें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को समायोजित करता है। यह मान्यता देता है कि छात्र अलग अलग गति से सीखते हैं और उनकी सीखने की शैलियाँ भी अलग अलग हो सकती हैं। शिक्षक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रदान करके विविध गतिविधियों और असाइनमेंट स्तर पर पढ़ने की सामग्री और लचीले समूह बनाकर या ग्रुप बनाकर शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षक कक्षा में सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग स्तर की पढ़ने की सामग्री प्रदान कर सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज assistive technology. Assistive technology, that means सहायक तकनीकी. Assistive technology helps students with disabilities or learning difficulties to assess the curriculum. It can be used to provide access to written materials, allow students to work at their own pace, and support the development of skills. Examples of assistive technologies include screen readers, text-to-speech software, speech recognition software, and dictation software. सहायक तकनीकी विकलांगता या सीखने की कठिनाई वाले छात्रों को पाठ्यक्रम तक पहुंचने में सहायता प्रदान करती है। इसका उपयोग लिखित सामग्री तक पहुंच प्रदान करने, छात्रों को अपनी गति से काम करने की अनुमति देने और कौशलों के विकास का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। सहायक तकनीकी के उदाहरणों में स्क्रीन रीडर, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और डिटेक्शन सॉफ्टवेयर सम्मिलित हैं। Now the next one is modified assignments. Modified assignments provide students with alternative ways to demonstrate their learning. They can be used to support students who struggle with traditional assignment or assessment. Modification may include simplifying the task, changing the format of the assignments, or providing the additional support. For example, students with dysgraphia may be allowed to type their answer instead of writing them by hand. अगर हम संशोधित असाइनमेंट की बात करें या संशोधित गद्य कार्य की बात करें, तो संशोधित असाइनमेंट छात्रों को अपनी सीखने की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए वैकल्पिक तरीके प्रदान करती है। इनका उपयोग उन छात्रों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें पारंपरिक असाइनमेंट्स या मूल्यांकन में कठिनाई होती है। संशोधन में कार्य को सरल बनाना, असाइनमेंट के प्रारूप को बदलना या अतिरिक्त समर्थन प्रदान करना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसा छात्र जो डिस्ग्राफिया की समस्या से ग्रसित है, ऐसे छात्रों को अपने उत्तरों को हाथ से लिखने की बजाय टाइप करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग. Flexible grouping allows students to work with others who have
similar learning needs or styles. It can be used to support collaboration and provide targeted instruction. For example, a teacher may group students based on reading level, learning style or interest. लचीले समूह छात्रों को उन लोगों के साथ काम करने की अनुमति प्रदान करते हैं जिनकी सीखने की आवश्यकताएं और शैलियां समान प्रकार की होती हैं। इनका उपयोग सहयोग को समर्थन करने और लक्षित निर्देशित प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक पढ़ने के स्तर, सीखने की शैली या रुचियों के आधार पर छात्रों को समूह में बांट सकता है। The next one is accommodation for testing. Accommodation for testing helps students with disabilities or learning difficulties to demonstrate their knowledge and skills. Accommodation can include extra time, a quiet environment, the use of a scribe, or the use of technologies. The accommodations used will depend on the student's need and the type of assignments. परीक्षण के लिए अनुकूलन की अगर हम बात करें तो परीक्षण के लिए अनुकूलन विकलांगता या सीखने की कठिनाई वाले छात्रों को अपनी ज्ञान और कौशलों को प्रदर्शित करने में सहायता प्रदान करते हैं। अनुकूलनों में अतिरिक्त समय, एक शांत वातावरण, एक स्क्राइब का उपयोग या तकनीकी का उपयोग शामिल हो सकता है। उपयोग के लिए अनुकूलन छात्र की आवश्यकताओं और मूल्यांकन के प्रकार पर निर्भर करेगा। So now, overall, curriculum and curricular adaptation can help to create an inclusive learning environment that accommodates diverse learners. These adaptations can be tailored to meet the needs of individual students and may include multi-sensory materials, individualized instructions, differentiated instructions, assistive technologies, modified assignment, flexible grouping, and accommodation for testing. By providing a range of adaptation, educators can help all the students to access the curriculum and achieve their full potential. पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम अनुकूलन एक समावेशी शिक्षा वातावरण बनाने में सहायता प्रदान कर सकती है जो विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अगर हम बात करें, अनुकूलन व्यक्तिगत छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जा सकते हैं और इनमें मल्टी सेंसरी सामग्री, व्यक्तिगत अनुदेशन, विभेदित अनुदेशन, सहायक तकनीकी, संशोधित असाइनमेंट, लचीले समूह और परीक्षण के लिए अनुकूलन शामिल हो सकते हैं। विभिन्न अनुकूलन प्रदान करके शिक्षक सभी छात्रों को पाठ्यक्रम तक पहुंचने और अपनी क्षमता तक पहुंच बनाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। थैंक यू।